برادران اسلام، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم ناموس رسالت کے لیے، ناموس قرآن کے لیے اور قوم و ملت کے لیے میدان عمل میں آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حکومتی اعلان کے مطابق کورونا گائیڈ لائن نافذ ہے، اس لیے سب لوگ تھوڑا سا پھیل جائیں۔ جو لوگ پیچھے ہیں عوام میں سے وہ سب جو ہے دائیں بائیں۔ آپ سبھی کا استقبال ہے آزاد رپورٹر جمشید پور۔ دوستو اس وقت میں لائیو ہوں جمشید پور کے مانگو عیدگاہ میدان سے، جہاں پر تریپورہ میں ہو رہے ہنسا اور مسلمانوں کے اوپر ظلم کے خلاف تمام مسلم سمودائے کے لوگ جمعے کی نماز کے بعد اکٹھا ہوئے ہیں اور سینکڑوں کی سنکھیا میں یہاں پر لوگ موجود ہیں جو ویرودھ پردرشن کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں تریپورہ میں ہو رہے ظلم اور ہنسا کے خلاف، اور سرکار سے اپیل کر رہے ہیں وپلب دیو کے خلاف نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے اور برخاست کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے۔ یہ تمام ویرودھ کے ساتھ یہاں پر تمام علماء کرام، تمام مسجدوں کے امام اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا جو ہے یہاں پر سینکڑوں کی سنکھیا میں لوگوں کی موجودگی دیکھی جا سکتی ہے، جہاں پر لوگ کافی زوردار ویرودھ پردرشن کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو آگے لے چلتے ہیں اور آگے سے ماحول دکھاتے ہیں۔ سرکار ہوش میں ہو، مسجد پہ حملہ بند کرو، مسجد پہ حملہ بند کرو، ایمان پہ حملہ بند کرو، ایمان پہ حملہ بند کرو، ایمان جلانا بند کرو، ایمان جلانا بند کرو، سرکار مردہ باد، مکھ منتری مردہ باد، برادران اسلام، میں پھر اعلان کرتا ہوں، علماء کرام آگے آ جائیں، آپ لوگ پھیل کر کے ذرا جگہ بنا کر کھڑے ہو، سوشل ڈسٹینس کے پر عمل کریں، ماسک کا بھی اہتمام کریں، اور مختصر پروگرام ہے۔ ہمیں قانون کے دائرے میں، اصول کے دائرے میں احتجاج کرنا ہے، اپنا احتجاج درج کروانا ہے، یہ ہمارا جمہوری اور قومی حق ہے، لیکن جوش میں ہوش ہمیں نہیں کھونا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ قرآن میں ہم پر فرض کیا گیا ہے وہ توسرو و توقرو، نبی کی تعظیم و توقیر کرو، اور قرآن نے کہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ اولا ہے، ہماری جان سے زیادہ اہمیت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اللہ کی کتاب قرآن کی ہے۔ اس لیے ہمیں جب قرآن چلایا جائے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دی جائے تو احتجاج کرنا ہمارا دینی، ایمانی اور حق ہے، قومی حق ہے، ہمارا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، ہمارا سنویدھان ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اب چند کلمات کے لیے حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المالک صاحب رحمت دی جا رہی ہے، وہ چند منٹ آپ سے خطاب فرمائیں۔ چیئر پکڑے رہی محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، آج انسانوں کا یہ سیلاب اور عاشقان مصطفیٰ کی یہ بھیڑ یہاں پر کیوں اکٹھا ہوئی ہے؟ عیدگاہ میدان آزاد نگر میں ہم شہر جمشید پور کے باشندے اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ تریپورہ میں مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، وہاں
مسجدوں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک جو ہماری مذہبی کتاب ہے اور پوری دنیا کو امن و شانتی کا پیغام دیتی ہے، امن و شانتی کے دشمن اس کتاب کو نظر آتش کر رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ اس میں پیش ہیں انہیں ہندوستان میں یا دنیا میں امن و سکون نہیں چاہیے بلکہ ظلم و زیادتی چاہیے۔ اس لیے امن کی کتاب کو جلا رہے ہیں وہ لوگ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ دنیا کے وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں امن و سکون کا پیغام دیا اور جنہوں نے امن و آشتی کی خاطر اپنی پوری زندگی بسر کی۔ ایسے ماحول میں جہاں لوگ ظلم و زیادتی کو فروغ دے رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے ظلم و زیادتی کا خاتمہ کیا اور امن و آشتی کو بڑھاوا دیا۔ آج پیغمبر اسلام پر وہی لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں جو امن و سکون کے دشمن ہیں۔ اس لیے ہم گورنمنٹ آف انڈیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ ترپورہ میں پیش رہے، خواہ وہ تنظیم کے تھرو ہو یا کسی تنظیم کے تھرو نہ ہو، انفرادی طور پر ہو، وہ تمام تنظیمیں جو اس میں آگے بڑھی ان تمام پر بین لگایا جائے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ہندوستان میں اس وقت خاص طور سے بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد، ہندو واہنی، یہ ایسی تنظیمیں ہیں جو مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا رہی ہے۔ اس لیے ہم اس بھرے منچ سے اعلان کرتے ہیں کہ ان تنظیموں پر پابندی لگائی جائے۔ ہندو واہنی، وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل، یہ ایسی تنظیمیں ہیں جو ہندوستان میں ظلم و زیادتی کو پھیلا رہی ہے، ہندوستان کے سنویدھان کو پامال کر رہی ہے، بار بار یہ قانون شکنی کر رہی ہے۔ اس لیے ان تنظیموں پر پابندی لگائی جائے۔ RSS کو بین کرو، BHP کو بین کرو، BHP کو بین کرو، وشو ہندو پریشد کو بین کرو، BHP مرد آباد، BHP آتنکوادی سنگٹھن ہے، آتنکوادی سنگٹھن BHP مرد آباد، آتنکوادی سنگٹھن BHP مرد آباد، پریشد آتنکوادی سنگٹھن مرد آباد، BHP کو بین کرو، RSS کو بین کرو، پورا سرکار مرد آباد، شاہ ہوش میں ہو، کیندر سرکار ایکشن لو، بھارت تکبیر، رسالت، اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد۔ اس لیے ہم حکومت ہند سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ترپورہ سرکار کو برخاست کیا جائے۔ یہ لوگ اس لائق نہیں کہ ملک میں حکومت کر سکے، اپنے ماتحت لوگوں پر عدل و انصاف قائم کر سکے۔ جو لوگ عدل و انصاف قائم کرنے میں یا ملک کی شانتی کو برقرار رہنے میں ناکام ہیں، وہ اس بات کے مستحق نہیں کہ انہیں حکومت کرنے کا مزید موقع دیا جائے۔ اس لیے وہاں راج شاسن لاگو کیا جائے، صدر راج نافذ کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ وہاں الیکشن کرایا جائے۔ انہی باتوں کے ساتھ ہم اپنی گفتگو مکمل کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ حکومت ہند مسلمانوں کے جذبات کا خیال کرے گی اور مسلمانوں کا احترام کرے گی۔ اس ملک کی سالمیت اور اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے اقلیت کی اس بڑی جماعت کو اپنے ساتھ رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر حکومت اس میں ناکام رہتی ہے تو پھر اس کا انجام خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے حکومت سے ہم قانون کے دائرے میں مؤدبانہ گزارش کریں گے کہ اس پر سختی کے ساتھ عمل کرے اور اس طرح پوری توجہ کرے۔ نعرہ تکبیر، رسالت، پورا پولیس ہوش میں آؤ، پورا پولیس ہوش میں آؤ، اوروں پہ ظلم بند کرو، اوروں پہ ظلم بند کرو، آتنکوادی RSS سنگٹھن کو بند کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد، پورا
मुस्तफ़ा यहाँ नामुसे रसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं, मुल्क की सालिमियत की खातिर जमा हुए हैं, भारत की डेमोक्रेसी और इसकी जमहूरियत की लाज रखने के लिए जमा हुए हैं। आप सबों को मालूम है कि त्रिपुरा में मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हमारी मस्जिदें जलाई जा रही है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखियां की जा रही है, नाज़ेबा कलमात बोले जा रहे हैं, अपशब्द बोले जा रहे हैं, बुरी भाषा का इस्तेमाल की जा रही है। जबकि सारी दुनिया को मालूम है कि पैगंबर इंसानियत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुहसिन कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए, बल्कि वो पूरी मानवता के लिए रहमत बनकर आए, पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। अब मुसलमानों 15 अगस्त 1947 को तो हिंदुस्तान आजाद हुआ, लेकिन आमना का लाल जब अरबिस्तान की सरजमीन में जलवागर हुए, उस वक्त पूरी इंसानियत को आजादी मिली। सिसकती हुई इंसानियत, बिलकती हुई इंसानियत को करार नसीब हुआ, इंसान ने अपना खोया हुआ मकाम हासिल किया। तो जो लोग आज नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, नाज़ेबा कलमात कर रहे हैं, वो सिर्फ मुसलमानों ही के दुश्मन नहीं, वो इंसानियत के दुश्मन है, मानवता के दुश्मन है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज के बहते हुए धारों से सिर्फ मुसलमान सैराब नहीं हुए हैं, पूरी दुनिया सैराब हुई है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना ये इंसानियत के को शर्मसार करने के मुतरादिफ है। और इसलिए हम हुकूमत हिंद से सोशल मीडिया के माध्यम से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि ऐसे फाशिस्ट ताकतों को, फिरका फरस्त ताकतों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और भारत की जमहूरियत, यहाँ की डेमोक्रेसी को बचाया जाए। और अगर ऐसा न किया जाए तो ऐसी घड़ी में जहां हर जगह मुल्क के प्रधानमंत्री हर मजलिस में कहते हैं सबका विकास सबका साथ, ये खुला हुआ मजाक होगा और सदी का सबसे बड़ा झूठ होगा अगर मुसलमानों के साथ इंसाफ न किया जाए। हम अपने नबी का कलमा पढ़ते हैं और हम अपने नबी की अजमत के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हम अपनी जिंदगी का खून का आखिरी कतरा हम नबी की अजमत पर कुर्बान कर देंगे। एक मुसलमान जिंदा जमीन में गाड़ा जाना पसंद कर सकता है, अंगारों पर चलना पसंद कर सकता है, लेकिन नामों से रसालत पर आ जाए, मेरे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे, ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह होश में आओ, मौजूदा सरकार होश में आओ, मुसलमानों पे जुल्म बंद करो, मुसलमानों पे जुल्म बंद करो, मुसलमानों पे जुल्म बंद करो। लब्बाइक लब्बाइक तो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जितनी भी फिरका परस्त तंजीमें, इनकी गीदड़ भक्तियों से मुसलमान डरने वाले नहीं। यहाँ की आजादी में हमारा खून शामिल है, यहाँ की आजादी में हमारा खून शामिल है और हम डरने वाले नहीं। ये बातिल से डरने वाले ये आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है तूने। इम्तिहान हमारा इस्लाम की फितरत में फितरत में लचकती है, जितना की दबाओगे ये उतना ही उभरेगा। त्रिपुरा सरकार मुर्दाबाद, त्रिपुरा सरकार मुर्दाबाद, त्रिपुरा सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक तकबीर बंद करो, आरएसएस को बैंड करो, आरएसएस को बैंड करो, अमन और शांति के दुश्मन को बैंड करो। मेरी पूरा
मुर्दाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दीन के गयूर मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किस वजह से यहाँ जमा हुए हैं, बात क्या हुई है, ये दर्द, ये बेचैनी क्यों है, ये सभी हजरात जानते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हजरात, ये सभी आप जानते हैं कि हम मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कोई उंगली उठाए और कीचड़ उछालने की कोशिश करे तो इस गुस्ताखी को कभी भी ईमान वाला बर्दाश्त नहीं करता। मोमिन है वो जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, मोमिन है वो जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताज़ीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। ये आजाद नगर के कल्ब में ये आज एहतजाज की एक चिंगारी है। ये एहतजाज इतना बढ़ेगा कि पूरे हिंदुस्तान में इश्क रसूल का नारा गूंजता नजर आए। हम अमन पसंद लोग हैं, हम शांति और अमन के मुहाफिजों में आते हैं। हम लोगों ने हमेशा इस मुल्क के कानून की और आइन की हिफाजत की है और हर जगह इसको मलहूज रखा है और अपने दायरे के अंदर चलने की कोशिश की है। लेकिन आज जो लोग हुकूमत की कुर्सी पर मौजूद है वो इस आईने हिंदुस्तान की बखिया उधेड़ रहे हैं, वो इस आईने हिंदुस्तान को खत्म कर देना चाहते हैं और दादागिरी का एक कानून ला करके हम पर थोपना चाहते हैं। उसे मालूम होना चाहिए कि हम संविधान पर यकीन रखते हैं, लेकिन हम संविधान को भी मानते हैं और संविधान के दायरे में रह करके हम अपने मजहब, अपनी मिल्लत, अपनी मस्जिद और अपने आका से मोहब्बत करने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करते हैं उसे माफ करने की बात ही तो नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए गुस्ताखे रसूल की सजा सिर्फ कत्ल है, मर्दन से जुदा है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो आज हो रहा है क्यों, पहले मुसलमानों की गैरत और हमीयत को खत्म करने की कोशिश की जाती है। जिस दिन मुसलमानों हमारा ईमानी गैरत खत्म हो जाए उस दिन वो दुश्मन सर चढ़ करके बोलने लगेगा। लिहाजा अपनी ईमानी गैरत को बेदार रखना है, अपनी हमीयत को बेदार रखना है। आज हमें ललकारा जा रहा है, हर जगह से डेमोलाइज करने की हमें कोशिश की जा रही है। हाल ये हो गया हमारे इस मुल्क का कि आज कोई अगर फेरी करने वाला फेरी करने के लिए जाता है तो उसका आईडी पूछा जाता है कि तुम मुसलमान हो कि हिंदू हो, और अगर वो मुसलमान है तो अपनी बस्ती में उसको कारोबार करने के लिए नहीं दिया जाता है। ये हाल हमारा है। आज हमारी बहू बेटी की इज्जत को उछाला जा रहा है और हम मुसलमान हैं कि हम खड़े होकर के तमाशा देख रहे हैं। अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है, ये हद से पानी ऊंचा जा रहा है और ये बात हमारी गैरत को ठोकर मारते मारते अब ये कमीने लोग मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर उंगली उठाने की कोशिश की है। लिहाजा अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब ये एहतजाज इतना बढ़ेगा उस वक्त तक ये नहीं रुकेगा जब तक मुसलमान अपने आका, अपने नबी, अपनी मस्जिद और अपने मजहब की हिफाजत के लिए बिल्कुल मुकम्मल तरीके से महफूज ना हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाम जिंदाबाद। अब हमको याद रखिएगा मुत्तहिद होने की और अपने गैरत को जमा करने की जरूरत है। जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, मुंतशिर होंगे तो यह होगा हमारा। मिस्र की सरजमीन पर चंगेजियत ने हमला किया था, चंगेज खान ने, लोग दुआ के लिए चले आए थे, हुजूर दुआ कर दीजिए, अल्लाह के वली थे, वहां दुआ कर दी उन्होंने। चंगेज खान की पूरी फौज अंधी हो गई, वापस चली गई, दोबारा हमला करने के लिए गई। फिर ये बुज़दिल कौम मुसलमान फिर अल्लाह के उस वली की बारगाह में पहुंचे, हुजूर दुआ कर दीजिए। ये चंगेज खान की फौज फिर आ गई है, फिर दुआ कर दी उन्होंने, और दुआ करते रहे, ये फौज अंधी होती रही, पीछे पलटती रही। तीसरी बार खुद चंगेज खान अपनी महज्जत में अपने साथ
लेकर के इस फौज को पहुंची तो ये मुसलमान बड़ी तादाद में अल्लाह के वली की बारगाह में आए कि हुजूर अब तो चंगेज खान खुद ही जो है मिस्र के दरवाजे पर आ गया है, अब तो जरा सा आप दुआ कर दीजिए। इधर दुआ के लिए हाथ उठा रहे थे, उधर से गैब से सदा आई, ऐ मेरे प्यारा बंदा रुक जा। जब ये जालिम इस्लाम की इज्जत को तार तार करने के लिए अपनी जान का नजराना दे सकता है, तो जो मेरा कलमा पढ़ने वाला है, जो रसूलुल्लाह का गुलाम है, क्या वो अपनी जान का नजराना नहीं दे सकता? इस्लाम की हिफाजत नहीं करना चाहता है, ऐसे मुसलमानों की हमें कतई जरूरत नहीं है। इसलिए आज मुसलमानों अपने ईमान की गैरत को, हमीयत को बेदार करने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों के ईमान की और गैरत की हिफाजत फरमाए। लिहाजा अपने अंदर गुस्सा रखिए, हर जगह गुस्सा होना ये अच्छी बात नहीं है। हमारी दोस्ती भी होगी तो अल्लाह के लिए, और हमें गुस्सा भी आएगा तो अल्लाह के लिए। जिस दिन हम गुस्से में आ जाए अल्लाह के लिए, हम वो सैलाब बन जाएंगे कि पूरे दुश्मनान इस्लाम को खसो खसा की तरह बहा करके ले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों के ईमान की हिफाजत फरमाए। तेरा मेरा रिश्ता है क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता है क्या? तेरा मेरा रिश्ता है क्या? मेरा रिश्ता है क्या? तेरा मेरा रिश्ता है क्या? भले नारा लगाते, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नाम जिंदाबाद, नाम जिंदाबाद, नाम जिंदाबाद, नाम जिंदाबाद। के पुलिस होश में आओ, पूरा हुकूमत होश में आओ, बंद करो, बंद करो। मुसलमानों तुम्हारी गैरत की बात आई है, अब अपनी गैरत को जो है, अब तुम्हारी गैरत को नलकारा किया है। अब कुरान शरीफ पे हमला होना शुरू हुआ है, मस्जिदें जलाई जा रही हैं। अब भी अगर मुसलमान गफलत की चादर ओढ़े अपने घरों में पड़े हैं तो अफसोस है ऐसे मुसलमान होने पर। अब भी अगर आपकी आंखों पर गफलत की पट्टी पड़ी है तो अफसोस है मुसलमान होने पर। मुसलमान तो वो है जो नबी की अजमत और कुरान की अजमत पर अपने खून का कतरा तो दे सकता है, मगर नबी की अजमत और कुरान की अजमत पर आंच नहीं आ सकता है। इसलिए कि मुसलमान का जीना मरना कुरान के मुताबिक है। मुसलमान मर तो सकता है मगर कुरान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, कुरान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुरान की एक आयत है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता व ला तुस्मिउस सुम्मद दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। यह कुरान की जो आयत है, इस आयत में मुराद अबू जहल, अबू लहब है। ये वो लोग हैं जो नबी के दुश्मन थे, ये वो लोग हैं जो नबी की अदावत में दिन रात कोसे रहते थे, ये वो लोग हैं जो नबी की राह में कांटे बिछाया करते थे, ये वही लोग हैं जो नबी को हालत नमाज में, हालत सजदा में, जिनकी पुष्प पे ऊंट की ओसड़ी डाली गई थी, तो नबी की गर्दन पे ऊंट की ओसड़ी डालने वाले वो लोग जिसको कुरान ने कहा इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ नबी ये मुर्दे हैं आपकी नहीं सुनेंगे। कुरान ने अबू जहल को मुर्दा कहा जबकि अभी मलकुल मौत उसके पास नहीं आए, अभी इसकी रूह तन से जुदा न हुई। और हजरत अमीर हमजा को जो सय्यदुश शुहदा है, मैदान जंग में शहीद हुए, आप तक कलेजा चबा लिया गया, मगर कुरान कहता है वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात, जो अल्लाह की राह में शहीद हो उन्हें मुर्दा न कहो। तो पता ये चला जिंदगी और मौत ये मलकुल मौत के आने जाने से नहीं है, बल्कि जिंदगी और मौत उस पर मुश्तमिल है कि जो नबी का वफादार है वो जिंदा है, जो नबी का गद्दार है वो मुर्दा है।
موت ہے تو ہم نبی سے وفادار رہ کر مرنا پسند کریں گے, جینا پسند نہیں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ہم اور آپ ناموس رسالت کے لیے, ناموس قرآن کے لیے اور قوم و ملت کے لیے جمع ہوئے. شاعر نے کہا ہے عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. میں پھر آخر میں اعلان کرتا ہوں کہ حکومتی گائیڈ لائن پر عمل کریں, ماسک اور سوشل ڈسٹینس پر عمل کریں, اور اخیر میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہماری سینٹرل حکومت جس طریقے سے ان دہشت گردیوں پہ گولی بہری بنی ہوئی ہے یہ بڑی افسوسناک بات ہے. نرسنگھا نند کئی مہینے سے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے. کتنے مقدمات درج ہوئے مگر آج تک اس کو گرفتار نہیں کیا گیا. یعنی پورا میں بغیر کسی قصور کے مسلمانوں پر حملہ ہوا. میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ اگر بنگلہ دیش میں کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہندوستانی مسلمانوں پر کیسے عائد ہوتی ہے؟ کیا تریپورہ کے لوگ بنگلہ دیش گئے تھے مندر جلانے کے لیے یا ہندوؤں پر حملہ کرنے کے لیے؟ یہ قانون کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ انصاف کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ اور عالمی میڈیا نے یہ رپورٹ دی ہے کہ وہاں 500 لوگوں کو گرفتار کیا گیا, سخت کارروائی کی گئی اور ایک جہتی کی ریلی نکالی گئی کہ ہمارے ملک میں بنگلہ دیش میں فرقہ پرستی نام کی کوئی چیز نہیں ہے, جو جرم کرے گا اس کو سزا ملے گی. مگر آج تک ہندوستان میں کوئی ایسی ایک جہتی والی ریلی نہیں نکلی, ملانے والی ریلی نہیں نکلی, کیونکہ ہماری سینٹرل گورنمنٹ کا تو منشور ہی ہے کہ فرقہ پرستی پھیلاؤ اور حکومت کرو, جنتا کو بیوقوف بناؤ اور حکومت کرو. لیکن ہم اپنی سینٹرل گورنمنٹ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اب یہ نظریہ چلنے والا نہیں ہے. ہندوستانی بیدار ہو رہے ہیں. مہنگائی کی مار جھیلتی ہوئی ہماری عوام جن کو فرقہ پرستی کے دلدل میں پھنسایا جا رہا ہے, ہندو مسلم کو لڑایا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں ہم برملا یہ اعلان کرتے ہیں, ہمارے اسلام کا پیغام یہ ہے کہ ہمت ملت نہیں سکھاتا آپس میں بھید رکھنا. ہندی ہے, ہم وطن ہے, ہندوستان ہمارا. ہمارا قرآن, ہمارا دین اتحاد و اتفاق کا درس دیتا ہے. سارے برادروں نے وطن کے ساتھ مل کر کے ہمیں کام کو آگے بڑھانا ہے. اس کو لے کر آگے جایا اور آگے, ابھی نہیں ابھی رکیے بعد میں, اور آگے لے کے بڑھیے, مجمع سے آگے تو میرے بزرگوں اور دوستوں, نرسنگھا نند دہشت گردی کر رہا ہے, اس کو کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے. اس کے اندر مسلمانوں کے خلاف آؤ فال بکتا رہتا ہے, اس پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے. تریپورہ میں منصوبہ بند طریقے سے ڈالی گئی اور ہمارے آقا علیہ السلام کو گالی دی گئی. آج تک اس پر کارروائی نہیں ہوئی ہے. الٹا جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں, سپریم کورٹ کے وکیل نے آواز اٹھائی تو اسی کے اوپر کارروائی ہو گئی. تو یہ حق بات کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جمہوریت کا غلط ہوتا جا رہا ہے اور ملک میں نفرت پھیلا کر کے آتنکواد کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. تیری مصیبت کا ہونا ہوا
कुरान पाक को जलाया गया, मुसलमानों में जुल्म सितम की इंतहा कर दी गई। हम अपनी ये मुतालबा करते हैं कुमार मुर्दाबाद, साइड हटिए जलाना बंद करो, पुलिस पर हमला बंद करो, जलाना बंद करो, जलाना बंद करो, जलाना बंद करो, मस्जिद जलाना बंद करो, मानव का कत्लेआम बंद करो, सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पूरा पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, आतंकवादी संगठन, आतंकवादी संगठन बीएमपी मुर्दाबाद, आतंकवादी संगठन आरएसएस मुर्दाबाद, आतंकवादी संगठन मुर्दाबाद, बाबू ले रहे स्क्रीनशॉट हम इतना गुस्सा और इतना विरोध प्रदर्शन किस लिए? ये ऐसा गुस्सा, इतना गुस्सा क्यों? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह का जुल्म जबर और तशद्दुद का पहाड़ तोड़ा जा रहा है, खास तौर पे पिछले 10 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि त्रिपुरा में एंटी मुस्लिम राइट्स हो रहे हैं, वहाँ मस्जिदों को जलाया जा रहा है, कुरान मजीद को नजर आतिश किया जा रहा है, कुरान के पारों को आग के हवाले किया जा रहा है, मस्जिदों की दीवारें तोड़ी जा रही हैं और मुसलमानों को मारा जा रहा है। यहाँ तक कि मुस्लिम बच्चियों की इज्जत पे भी जो है उंगलियां उठाई जा रही है और उनकी इज्जत पे से खिलवाड़ किया जा रहा है। आप मुझे बताइए, ये डेमोक्रेटिक और सेकुलर कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर कंट्री में क्या इस तरह का जुल्म हो सकता है? आप मुझे बताइए। और क्या ये स्टेट और स्पॉन्सर राइट नहीं है? अगर स्टेट स्पॉन्सर राइट नहीं है तो पूरी दुनिया के स्टेट जी सब बड़े बड़े बुद्धिजीवी कहते हैं कि कोई भी राइट जो है ना एक दिन से ज्यादा नहीं चल सकता, लेकिन 8 दिनों से लगातार चल रहा है। मुसलसल मस्जिदें जलाई जा रही हैं, 20 से ज्यादा मस्जिदें जलाई जा चुकी हैं, बेशुमार मुसलमानों के घरों को नजर आतिश किया जा चुका है, कई मुसलमान शहीद हो चुके हैं और कुरान मजीद जो हमारी होली बुक है, मुकद्दस किताब है, उसके साथ वहां बेहुरमती की जा रही है। और इसी पे बस नहीं, बल्कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी रूह से ज्यादा अजीज हैं, उनकी शान में भी गुस्ताखी की जा रही है। आप बताइए, इतना सब कुछ होगा तो हम लोगों को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा?
हम तो मुसलमान हैं, छोड़िए जो गैर मुस्लिम लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, वो भी गुस्सा कर रहे हैं और उनके अंदर भी एंगर है और उनके अंदर भी गुस्सा है, आक्रोश है। उसी आक्रोश को जाहिर करने के लिए तंजीम अहले सुन्नत व जमात के बैनर तले आज हम लोग ने ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, जो त्रिपुरा वायलेंस के अगेंस्ट है और त्रिपुरा की हुकूमत के खिलाफ है। और इस प्रोटेस्ट के जरिए हम ये मुतालबा करते हैं कि जितनी मस्जिदों को जलाया गया है, हुकूमत हिंद उनको सबसे पहले सही करे, रिस्टोर करे, और जितने मकानात को नजर आतिश किया गया है उन मकानात को रिहेबिलिटेशन का काम किया जाए, जितने लोग शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए, और जितने लोगों की साथ जो है बदतमीजी की गई है उनके साथ जो है उनका कंपेंसेशन दिया जाए। और साथ ही साथ जो लोग कल्प्रिट हैं, जो लोग दंगाई हैं, आतंकवादी हैं, जो लोग ब्लेस्फेमी का इर्तिकाब कर रहे हैं, उन लोगों को मुकदमा दायर करके सख्त से सख्त सजा दी जाए, वरना ये तहरीक पूरे मुल्क में चलेगी। जुल्म के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, इंसानियत की बात कर रहे हैं। दुर्गा पूजा के वक्त बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा हुआ था, उस वक्त आप लोग क्यों खामोश? हम लोग खामोश नहीं थे। मैं आपको बता दूं कि कहीं भी जुल्म होता है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, तंजीम अहले सुन्नत व जमात सख्ती के साथ कंडेम करती है, कड़ी निंदा करती है, मजम्मत करती है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, फौरन वहाँ की हुकूमत ने एक्शन लिया, 500 से ज़्यादा लोगों को जो है बिहाइंड द बार किया और वहाँ की मंदिरों को जो है फिर से जो है रिहेबिलिटेट किया, लोगों को कंपेंसेशन दिया। और वहाँ के सदर ने, प्राइम मिनिस्टर ने आके कहा कि हम इसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन आप बताइए, हर छोटी छोटी बात पर किस खिलाड़ी का कुत्ता सही है कि नहीं है, ये मोदी जी ट्वीट करते हैं, इतना बड़ा नरसंहार हो गया। बताइए, एक ट्वीट आया, कुछ कहा मोदी जी ने, अमित शाह ने कुछ कहा? तो इससे पता चलता है कि ये स्टेट स्पॉन्सर दंगा था, त्रिपुरा की राज्य सरकार का प्रायोजित दंगा था, और ये वो दंगा था जिसकी जो है हम लोग मजम्मत कर रहे हैं। और विपुल कुमार जो खुद बांग्लादेशी है, विपुल कुमार तो बांग्लादेश से भागा हुआ मुख्यमंत्री वहां का, उसको क्या मतलब है हिंदुस्तान के लोगों से? जो बांग्लादेशी, जिसकी नेशनलिटी बांग्लादेशी है, वहां पैदा हुआ, वहां से भाग कर आया, तो हिंदुस्तानियों के दर्द को हिंदुस्तानी ही समझ सकता है, ये बांग्लादेशी मुख्यमंत्री नहीं समझ सकता, इसलिए वो दंगा करवा रहा है और इसकी मजम्मत कर रहे हैं। त्रिपुरा से खबर आ रही है कि अब रिहैब का काम किया जा रहा है, बहुत सारी सामाजिक संगठन वहाँ जा रही है, जमीयत उलमा हिंद के लोग वहाँ गए, मस्जिदें बनाने की बात करें, तो क्या तंजीम अहले सुन्नत का टीम कोई वहाँ अभी तक गया है? देखिए, तहरीक फरोग इस्लाम हमसे जुड़ी हुई है, तहरीक फरोग इस्लाम के कमर गनी उस्मानी गए हैं। आपको मालूम है वो होटल में ठहरे हुए थे, उनके होटल उनको वहाँ से खाली करवाया गया, और धर्मनगर का जो एसपी है उन्होंने फोन किया कि आपकी जान को खतरा है, आप यहाँ से चले जाएं, आप पानी सागर नहीं जा सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने रिस्क पे जा रहा हूँ, हम लोग जाएंगे, वहाँ एनालाइज करेंगे और जितने लोगों पे जुल्म हुआ उसका जायजा लेके हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करेंगे और मदद करेंगे। पता है आपको, वहाँ की पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके FIR तक कर लिया है, अभी उनको डिटेन किया गया है थाना में। तो आप बताइए ये कैसा जुल्म है कि जुल्म भी हो रहा है, और जो लोग जुल्म मजलूमों की मदद करने जा रहे हैं उन पे UAPA लगाया जा रहा। एक वकील ने आवाज उठाई, उसको UAPA और NSA के अंदर उसको अंदर कर दिया, उस पर चार्जशीट दाखिल कर दिया। तो बताइए कैसा जुल्म है? मतलब मजलूम भी हम ही, और जब मजलूम दंगाई भी हम ही पे इल्जाम भी है और हम ही पे जुल्म भी हो रहा है। तो मुंसिफ भी हम हैं, जालिम भी हम हैं, तो क्या किया जा सकता है? ऐसी हालात में मुसलमानों को चाहिए कि अपने अंदर यूनिटी पैदा करें और स्ट्रांगली इसका कंडेम करें, और जरूरत पड़े तो वह जो है सड़कों पे आए। और अगर ये हुकूमत नहीं चेतती नहीं है, तो हमें चाहिए कि अपनी आवाज को इंटरनेशनल लेवल पे बुलंद करें। क्या कर सकते हैं हम लोग? तो दंगाई लोग हैं नहीं कि दंगा करें, हम लोग तो BHP के और विश्व हिंदू परिषद के दंगाई हैं नहीं, हम तो शांतिपूर्वक लोग हैं, हम लोग अपनी आवाज को बुलंदी कर सकते हैं, पीसफुली वही कर रहे हैं। फिर भी अगर हुकूमत एक्शन नहीं लेती है तो ग्लोबल कम्युनिटी जो है, इंटरनेशनल कम्युनिटी से, खासकर मैं आपके माध्यम से अंसार भाई और आजाद रिपोर्टर, जितने भी हमारे गल्फ में भाई लोग हैं, जितने भी हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, उनसे हम गुजारिश कर रहे हैं, मेरे भाई आप पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां पे जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आप आवाज बुलंद नहीं कर सकते, तो कम से कम जो वहां के शेख हैं, जो अरबी मुसलमान हैं, मिस्री हैं, जो अराउंड द वर्ल्ड से लोग आके काम कर रहे हैं, उनसे राब्ता कीजिए, उनको बताइए कि किस तरह के हालात हिंदुस्तान में बन रहे हैं, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पे, कभी NRC के नाम पे, कभी CAA के नाम पे, कभी 370 के नाम पे, और कभी तरह तरह की धार्मिक जो है मामलात को उठा के मस्जिद के नाम पे किस तरह मुसलमानों को सप्रेस किया जा रहा है। ये बात आप उन तक पहुंचाएं ताकि इंटरनेशनल लेवल पर मुसलमानों के बारे में लोग और मुसलमान जान सके और हमको सपोर्ट कर सके, ताकि यहाँ पे अमन और शांति बहाल हो सके। हुकूमत से आप एक्शन की बात करें, किस तरह के एक्शन चाहते हैं? हुकूमत से एक्शन चाहते हैं कि सबसे पहले त्रिपुरा गवर्नमेंट को जो ना
इथिकली कोई जो है ये अधिकार नहीं बनता है कि वो हुकूमत करे, उसको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन ये बदतमीज लोग हैं, इस्तीफा तो देंगे नहीं, तो राष्ट्रपति सबसे पहले एक्शन लेके वहाँ डिसॉल्व करे हुकूमत को। दूसरी बात है कि जितने कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने दंगा किया है, मस्जिदों को तोड़ा है, हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, जिन्होंने कुरान को जलाया है, उन लोगों पे कार्रवाई की जाए। बताइए कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो माइक लगा के हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा था, बताइए पैगंबर इस्लाम जिनको 2 अरब लोग फॉलो करते हैं। त्रिपुरा पुलिस का एक पदाधिकारी का वीडियो भी वायरल हो रहा है कि कह रही है वो कि वहाँ मामला ठीक है। ये गलत है। आप बताइए, गोदी मीडिया तो कुछ दिखा नहीं रही है, हम लोगों को तो बीबीसी के माध्यम से और जो आजाद मीडिया है, आप लोग जैसे सोशल मीडिया लोग हैं, उनके माध्यम से न्यूज पहुंच रही है, वरना ये गोदी मीडिया जो चाटुकार मीडिया है और जो तलवे चाट रही है, बल्कि शर्मगाह चाट रही है। ये तलवा नहीं चाट रही है, तलवा चाटती तब भी ठीक था। ये मोदी और योगी की शर्मगाह को चाटने वाली गोदी मीडिया ये क्या सच्चाई दिखाएगी? इनको फुर्सत है तलवा चाटने और शर्मगाह चाटने से, तो ये हम चाहते ही हैं। हमको तो पता भी चला, तो वो क्या बताएगी? वो एसपी जो है और एक डीजीपी को शर्म आनी चाहिए कि संविधान पे शपथ लिया उसने, यहाँ की संविधान पे शपथ लिया, कसम खाया कि यहाँ जो है लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखेंगे, और वहाँ खड़ा होकर वहाँ के डीजीपी बोल रहा कि यहाँ कुछ नहीं हुआ। बीबीसी दिखा रहा 20 से ज्यादा मस्जिदें जला दी गई, और वो कह रहा कुछ नहीं हुआ, बेशुमार लोग शहीद हो गए, कुछ नहीं हुआ, कुरान के पल्ले जला दिए गए, कुछ नहीं हुआ, मस्जिदें तोड़ दी गई, कुछ नहीं हुआ। तो प्रशासन भी वहां मुजरिम है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर त्रिपुरा तक जितने भी दंगे हुए हैं, इन तमाम दंगों से साबित हुआ है कि इन दंगों में कहीं ना कहीं सामने से या पीछे से पुलिस का हाथ है। तो अब कैसे हम पुलिस पे विश्वास करें? आप बताइए। विश्वास उठता चला जा रहा है, इसको रिस्टोर करने की जरूरत है, और ये प्रशासन ही कर सकती है। और प्रशासन को चाहिए कि जितने भी कल्प्रिट्स हैं उन पे मुकदमा दायर करके उनको बिहाइंड द बार भेजा जाए, और इंडियन पेनल कोड के साथ उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। अपना परिचय। मैं शमशादुल कादरी सादी, तंजीम अहले सुन्नत व जमात का प्रवक्ता हूँ। शुक्रिया। आपका शुक्रिया अदा करते हैं तंजीम की तरफ से कि आप हजार तशरीफ लाए और इस एहतजाज को, इस एहतजाजी जलसे को कामयाबी से हमकिनार किया। इंशाअल्लाह जब भी आपको आवाज़ दी जाएगी, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप जरूर तशरीफ लाएंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। त्रिपुरा के अंदर हो रहे हिंसा और मुसलमानों के ऊपर जुल्म के ख़िलाफ़ तमाम मुसलमान कौम आज मानगो के ईदगाह मैदान में जमा होकर पुरअमन एहतजाज दर्ज करवा रही थी, विरोध प्रदर्शन कर रही थी। और जिस तरह मुसलमानों के घर में आग लगा दिए जा रहे हैं और इसकी कड़ी निंदा मजम्मत किए जा रहे थे। यहाँ पर सिर्फ त्रिपुरा में हो रहे जुल्म के खिलाफ ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश में जिस तरह माइनॉरिटी अल्पसंख्यकों पर जुल्म हुआ दुर्गा पूजा के टाइम में, उसकी भी निंदा और मजम्मत की गई। और साथ ही साथ जिस तरह बांग्लादेश में जो जुल्म हुआ उसको लेकर वहाँ की सरकार ने उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजा था, लेकिन साथ ही इन लोगों का विरोध और प्रदर्शन और मजम्मत ये था कि जिस तरह त्रिपुरा में हो रहे जुल्म जो मुसलमानों के ऊपर हो रहे हैं उसके ख़िलाफ़ ये तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर, तमाम मुसलमान कौम आज जुमे की नमाज के बाद इकट्ठा होकर मजम्मत कर रहे थे, निंदा कर रहे थे इसकी कि इस तरह की चीज़ें हिंदुस्तान में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिएगा। जितने भी लोग, करीब 3000 लोग हमें लाइव देख रहे हैं, तो वो लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पहुँचाइएगा हुकूमत हिंद तक, हिंदुस्तान की सरकार तक। देखते रहिए आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।